Not at all. Because this is not the first film which is getting released, so there's no question of any kind of nervousness. I'm rather excited. I'm rather excited for the fact that the kind of film which has been made, जो दिल से बनाई गई है वो फिल्म, लोग उसको किस तरह से लेंगे इस मामले में मेरा एक्साइटमेंट ज़रूर है, लेकिन नर्वस नहीं होता हूँ मैं. अब क्या नर्वस हूँ? See, this is about a Kashmiri guy who basically works for a PWD department, and he's an engineer. And how, in the given situation of Kashmir, he gets trapped, and in that situation also, how he maintains his honesty, even in that situation. It becomes a matter of choice that आपको क्या choose करना है. एक ख़ास situation में जब आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ल्योर कर रही हैं, उन सिचुएशन में भी जब आप ईमानदारी का रास्ता अपनाते हैं, दैट बिकम्स द चैलेंज. नाउ दिस गाय इज़ बेसिकली ट्रैप्ड इन दैट सिचुएशन. जो अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है, हर एक आदमी करता है, बट दिस गाय इज़ अटैचमेंट टुवर्ड्स हिज सन, टुवर्ड्स हिज फैमिली, टुवर्ड्स द सोसाइटी, उसके लिए परिवार और सोसाइटी के मसलों में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है. उस तरह का आदमी है. लेकिन उस समय के हालात में मिड 90s में कैसे एक पॉलिटिकल सिचुएशन में वो आदमी ट्रैप होता है और ट्रैप का क्या नतीजा होता है, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट दैट. जैसे आपने कहा the current scenario is the moment. नॉट करंट सिनेरियो. आई एम ओके. Absolutely, very similar what you have said this side now. Surgical strike, then post this, there are so many things happening. They don't want Pakistani actor to be a part of the Hindi film industry. Now, Ae Dil Hai Mushkil, which is about to release, there's a threat coming from the political parties. You belonging to the same industry, what's your take? What's your view? I will tell you something that every other person today is talking about surgical strike. हमारे यहाँ कहते हैं कि अप्पू झप्पू पप्पू, everybody is talking about surgical strike. The irony of this country is that you get a platform like this, I get a platform like this, and I start talking about the surgical strike. जिनके घरों में दूर दूर से कोई भी आर्मी का कोई जवान इन्वॉल्व नहीं है, दूर दूर से कोई रिलेटिव आर्मी में नहीं है, लेकिन वो आदमी आज सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बोल रहा है. ये बहुत ही दुख की बात है. मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आई शुड रादर फोकस ऑन माई एक्टिंग, एंड बीइंग अ जर्नलिस्ट people should focus on other important topics which are equally important than talking about surgical strike. Okay, that's the important part is Ae Dil Hai Mushkil, which is banned by a political party, and I believe being an actor, it is very important for you also. See, I'll tell you something. The political party has it been banned by the government? No, it is not. Then what is the point in talking about it? No, see, political parties can raise questions. Political parties can raise questions, but the government, until and unless this is banned by the government, you cannot say the political party तो ऐसे ही बातें करती रहती है कि वो फिल्म रिलीज नहीं हो, ये फिल्म रिलीज नहीं हो, ये सब तो चीज़ें चलती रहती हैं. बट गवर्नमेंट जब तक इस चीज़ को बैन नहीं करती है, मैं नहीं मानता कि किसी फिल्म को आप में अगर गट्स है तो फिल्म को आप रिलीज कीजिए. देखिए गवर्नमेंट आपको सिक्योरिटी देती है या नहीं देती है. Mukesh Bhatt today met Mr. Rajnath Singh. I don't know about that. I would rather talk about my father Iqbal, than what Mukesh Bhatt says, what government of India says, what other people say. Let's talk about my father Iqbal. well, नरेंद्र जी, एक क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी माय फादर इकबाल के लिए आपने कई सिटी टूर किए हैं. जी. तो मैं फिल्म के बारे में तो आप बता ही चुके हैं, लेकिन हम एक चीज़ जानना चाहते हैं कि वहाँ के मीडिया से जैसा आपका इंटरेक्शन हुआ और बॉम्बे में जो मीडिया इंटरेक्शन कर रही है, दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? मुंबई की मीडिया जो है वो जाहिर सी बात है, चूँकि आपकी घर की मीडिया है, लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं. बाहर की मीडिया जो है डेफिनेटली वो भी उतना ही अवेयर हैं, लेकिन जैसे कहते हैं कि घर की बात कुछ और होती है, तो मुंबई तो मेरे लिए घर है. और यहाँ की मीडिया वाकई उस हिसाब से काफ़ी कॉन्शियस है, काफ़ी अवेयर है. तो थोड़ा सा फ़र्क होता है द नेचर ऑफ क्वेश्चंस में, और नेचर ऑफ क्वेश्चंस कभी कभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाते हैं. बाहर के जो है अपने लोकल मसले होते हैं, उन लोकल मसलों की चर्चा ज़्यादा होती है, उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं. ये बेसिक मुद्दा मुझे लगता है कि बेसिक डिफरेंस है. दर्शकों को अपनी फिल्म के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई एक ऐसा अटेम्प्ट है जो कुछ एंथुजियास्टिक एक टीम है जिसने बनाई है. बड़ी साफ़ सुथरी सी फिल्म है. आप देखेंगे कि एक आम आदमी का जीवन कितनी सारी कठिनाइयों से गुज़रता है. उस कठिनाई में भी वो आदमी अपनी डिसेंसी मेंटेन करता है, कैसे करता है, और एक गवर्नमेंट के साथ काम करता हुआ आदमी
जब एक पॉलिटिकल सिनारियो में पड़ता है तो अपनी गरीबी के बावजूद कैसे वो ट्रैप नहीं होता है, ये फिल्म उन लोगों के लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होगी। बहुत ही साफ़ सुथरी सच्ची सी फिल्म है जो दिल से बनाई गई है। आई एम श्योर अभी आप लोग भी फिल्म को देखने के लिए जा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप लोग किसी भी हद से डिसअपॉइंटेड होंगे। थैंक यू सो मच जी। Personally feel I should not ask you, but still asking you, how many pain we are getting for my father? I think this question should be asked from the producer, not from me. Thank you so much. Thank you. Thank you. वसीम भाई खास बात है यहाँ पे आने की प्रीमियर में देखिए, क्योंकि मेरा एक गाना है इसमें और बहुत ही अच्छा सिर्फ गाना नहीं कहूँगा, गज़ल है, क्योंकि आजकल गज़लें बनती नहीं हैं और तो इस फिल्म में गज़ल भी है, माई फादर इकबाल जैसा कि नाम भी ऐसा है, तो इसलिए मैं देखने आया हूँ कि वो पर्दे पे कैसे लगती है। क्या ब्रीफ था म्यूजिक डायरेक्टर का आपने जब अपनी गजल का गाई और आपने रिकॉर्ड किया? इसका ब्रीफ ऐसा था कि उनको बिल्कुल गज़ल का पैटर्न नहीं चाहिए था, उनको चाहिए था कि ये कुछ मॉडर्न लगे, जो यूथ से कनेक्ट हो सके। और इसके हालांकि शब्द बड़े भारी भरकम शब्द हैं, लेकिन इसकी जो गायकी का अंदाज़ है वो बहुत ही मतलब सिंपल रखा है, थोड़ा वेस्टर्न भी है, तो गज़ल में कुछ नई बात है। ओके, आप इफ यू कैन हम सम लाइन ऑफ द गजल, जी, अगर कुछ आप गुनगुना दें उसी गजल का। वक्त फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी, गुलों के साए होंगे और जिंदगी रूबरू होगी। वक्त फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर जो मसला चल रहा है, ऐ दिल मुश्किल को लेकर जो मसला चल रहा है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप सेम इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। देखिए, मैं आर्टिस्ट के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक देश की बात आती है, मुझे लगता है कि वी शुड स्टैंड बाय आवर कंट्री। जब पूरे देश के जवान, इतने सारे लोग उसके लिए खड़े हैं, उनको नहीं पता है कि मैं इस कंट्री का आर्टिस्ट हूँ कि किस कंट्री का आर्टिस्ट हूँ, लेकिन वो फिर भी लड़ रहे हैं। उनको नहीं पता है कि यहाँ पे ऐ दिल मुश्किल लगने वाली है और उसमें फवाद खान आएंगे। वो सिर्फ एक वेट करते हैं कि उनको मरना कब है, तो वो गोली खाते हैं, मर जाते हैं, और हम लोग सिर्फ ये देखते रहते हैं। हम लोग उसमें भी रीज़न्स निकालते रहते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि ये हमें प्रूफ बताइए, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। तो मुझे लगता है कि देश के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत है। हम सब लोगों को आर्मी का साथ देना चाहिए, अपने देश का साथ देना चाहिए। ओके, अनुराग ने जिस तरह से कहा कि जिस वक्त फिल्म फिल्माई जा रही थी, उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते बेहतर थे, और हाँ। उसके बाद ये सब हुआ है। 400 टेक्नीशियन जी जी, और एक प्रोड्यूसर का पैसा, ये सब भी तो हिंदुस्तान नहीं, ये और बात एक पॉलिटिकल पार्टी अपोज कर रही है उसको रिलीज करने के लिए। हालांकि गवर्नमेंट नहीं कह रही है, हाँ। और आलम ये है अपोज करने का कि आज राजनाथ सिंह से मुलाकात करी मुकेश भट्ट ने जाके दिल्ली। जी। तो ये और फिल्म पीपल आर ऑलवेज सॉफ्ट टारगेटेड, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये मुझे गलत लग रहा है। ये बात जो आपने बोली है, मुझे इस बारे में मैं भी बहुत देर से सोच रहा था, क्योंकि ऐ दिल है मुश्किल या कोई और फिल्म, जितनी भी फिल्में बनी हैं, वो जब बनी थी तब हमारे रिश्ते पाकिस्तान के साथ बुरे नहीं थे, और तब हमारे जितने भी आर्टिस्ट थे वहाँ के, वो यहाँ पे वेलकम थे और तब चल रहा था। तो अब उनकी ये गलती नहीं है। अब फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि उसको रिलीज़ होने देना चाहिए बड़े प्यार से, क्योंकि उनका एक आर्टिस्ट है, हमारे यहाँ के 400 टेक्नीशियंस हैं जिनकी दाल रोटी यहाँ से चलती है। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ टोटली रॉन्ग। आगे के लिए, आप फ्यूचर के लिए कह सकते हैं कि हम उनके साथ काम ना करें, वो बेटर है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं फादर इकबाल किस तरह से आपका सहयोग इस लगे, उसके बारे में सहयोग तो किस तरह से जुड़े, मतलब म्यूजिक के बारे में कुछ जानना चाहिए। अब म्यूज़िक तो पूरा म्यूज़िकल फिल्म है और बहुत अच्छा सिचुएशन मिला है जिसको हमने अच्छी तरह से हमने उसको खूबसूरत से सजाया। म्यूजिक सुनेंगे तो पता चलेगा। वक्त फुर्सत जो यूवी ने गाया, इसको 3 तरीक़े से 3 वर्जन बनाया, तो बहुत ही प्यारा सा गाना है। कितना चैलेंजिंग था, जिस तरह से टाइटल मैं फादर इकबाल आपके लिए गाना कितना चैलेंजिंग है? ये तो बहुत ही टफ गाना है, हर किसी के बस की बात नहीं है इसको कंपोजिशन करना। काफ़ी जो बड़े बड़े वाजिद भाई, सजीद भाई, सब ने बोला कि इस जॉनर का गाना बनाना बहुत मुश्किल होती है। जैसे कमर्शियल सभी गाना बनाते हैं, बट इसको बनाना थोड़ा मुश्किल है। सुनेंगे तो पता चलेगा सबको और पसंद भी आएगा।
अभी नरेंद्र झा जी ने भी थोड़ा इस गाने का प्रशंसा किया, मेरा नहीं, पूरा गाना बहुत दिल छूने वाली है। आपका कितना गाना है इस फिल्म में? 3 गाने हैं। तो गाने के बारे में जानना चाहेंगे? वही वक्त फुर्सत वादे मुद्दत 2। वक्त फुर्सत में मेरे सामने वो खूबरू होगी, गुलों के साए होंगे और जिंदगी रूबरू होगी, इस तरह से। फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे सर? फिल्म तो जब सुना हमने तो नरेशन में बैठा तो बहुत अच्छा लगा, और लुक भी बहुत अच्छी है फिल्म की, और उम्मीद है सबको पसंद आएगा। और एवरेज बहुत अच्छी है, म्यूज़िक भी बहुत अच्छा किया। फिर थैंक यू वेरी मच। छोड़ो छोड़ो रेडी पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। Hi, my name is Amit Lekhwani. फिल्म में आप कौन सी भूमिका निभा रहे हैं, कौन सा कैरेक्टर आप जो प्ले करते हैं? इस फिल्म में मैं एज एन टेररिस्ट हूँ, एज एन नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। तो इससे पहले कभी आप टेररिस्ट का रोल प्ले किया, तो इस मूवी के करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ तैयारी करनी पड़ी खास, जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहें? नहीं, एक्चुअली मैं इससे पहले मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट्स किए हैं, बट इसके लिए मैंने काफ़ी तैयारी की, बिकॉज टेररिस्ट हर कोई करता है, बट इसमें मुझे कुछ अलग करना था। तो इसलिए मैंने काफ़ी इस पर सर्च किया, स्टडी किया कि क्या कुछ नया कर सकता हूँ मैं इसमें, और मैंने अपनी 100% दी इस कैरेक्टर को निभाने के लिए। तो इस शूटिंग के टाइम पे ऐसी कोई मोमेंट जो आप लोगों के साथ शेयर करना जो सबसे अलग रहा हो, जो आज ये मूवी कंप्लीट होने के बाद रिलीज़ होने जा रही है और आप भी उस मोमेंट को मिस करते हो? मिस था कि हमारी टीम वर्क जो मैं इस मूवी में काफ़ी मिस करूँगा। हम जब शूट करते थे हमें पता नहीं रहता था कि वहाँ का माहौल कैसा रहता है, एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, बट शूट होने के बाद हमें वो मोमेंट बहुत ही अच्छे लगते थे। दैट वाज अ स्पेशल मोमेंट फॉर मी, एंड इवन दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी स्पेशल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। अगर आपके लुक की बात की जाए तो मूवी में कुछ ऐसा ही लुक दिखेगा आपका, दिखने वाला है कि या कोई दूसरा डिफरेंट लुक है? ना, ऑब्वियसली दिस इज़ माई ओरिजिनल लुक, सो आई एम प्लेइंग इन द सेम लुक इटसेल्फ इन दिस मूवी। ओके, थैंक यू। या थैंक यू। You know, एक sensible आगे कभी आप अगर from where you got this idea today the film is having premiere, are you know? Yeah. From where I get the idea? Yeah. Basically, I'm from Jammu and Kashmir. मैंने पिछली 2 फिल्मों के बाद मुझे कुछ सीरियस मुद्दे पे फिल्म करनी थी, जैसा कि आप कश्मीर के हालात तो समझ ही रहे हैं किस तरह के हालात चल रहे हैं। तो कश्मीर के हालात को देखते हुए मेरे पास मैं इंस्पायर हुआ हूँ काफ़ी बाप बेटे के सब्जेक्ट से। मैं हॉलीवुड के काफ़ी सारी फिल्में देख चुका हूँ। तो इंडिया में माँ के ऊपर बहुत सी फिल्में बनी हैं, बाकी रिलेशनशिप पे बहुत सी फिल्में बनी हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक फादर बेटे के बीच की एक फ़िल्म बनाई जाए। तो ये एक आम जिंदगी की कहानी है, बहुत ही एक आम सी जो घटनाएं घटती हैं एक इंसान के जीवन में, वैसे ही एक बाप बेटे के रिलेशनशिप पे ये कहानी है। आप जब फिल्म देखेंगे तो आप हर एक चीज़ को अपने साथ कनेक्ट करेंगे। तो मेरा मुद्दा है एक मिडिल क्लास फैमिली जो कि जम्मू कश्मीर जैसी डिस्टर्ब्ड एरिया, एक ऐसी जगह जहाँ पे आए दिनों कर्फ्यू, टेररिज्म से जुड़े मुद्दे और ऐसे करप्शन को लेकर के सवाल, तो उन वैसी जगह में एक मिडिल क्लास, एक ईमानदार, एक हीरो, एक ऐसा शख्स जो अपनी फैमिली के लिए जो उसकी जर्नी है उसमें क्या अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसके बारे में फिल्म है। तो ये आइडिया मुझे बेसिकली बहुत पहले से था, लेकिन मैंने इस साल मैंने सोचा जनवरी में कि क्यों ना इस फिल्म को कर दिया जाए। हैदर की अगर मैं बात करूँ, विशाल भारद्वाज की फिल्म की काफ़ी अलग तरह का सब्जेक्ट था। उसमें भी कहीं ना कहीं जो मुद्दे वहाँ हैं कश्मीरी ज़मीन के, उसको कितनी सिमिलरिटीज होगी, दो आई अंडरस्टैंड कंप्लीटली एग्री, बहुत अलग अलग मुख्तलिफ फिल्में होंगी, लेकिन फिर भी अगर देखें क्योंकि आप वहीं से बिलोंग करते हैं। जी देखिए, हैदर जो फिल्म थी विशाल सर ने, उस फिल्म को हैमलेट एक बहुत ही फेमस प्ले है, इंटरनेशनली ये बहुत अक्लेम हुआ है, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने एक कश्मीर की तरफ उसका रुख मोड़ दिया था। कश्मीर की जो चीज़ें विशाल सर ने दिखाई
वो एक अलग मुद्दा है। और मेरी जो फिल्म है वो एक कुछ बॉर्डर एरियाज़ JNK और हिमाचल, उस बॉर्डर एरिया पे जो अलग सी कुछ घटनाएं हैं जो मैं इस फिल्म में दिखाना चाहूँगा। नेक्स्ट सवाल। सुजात, अब तक का रेस्पॉन्स क्या है फिल्म का? मुझे लगता है मुझे आपसे पूछना है लेकिन फिर पूछूंगा। जी। स्क्रीन में फिल्म रिलीज हो रही है। देखिए, आजकल आप जानते ही हैं कि स्क्रीन्स की बहुत मारामारी चल रही है। हर हफ्ते 10 से 12 फिल्में रिलीज़ हो रही हैं हिंदी। तो इस हफ्ते भी 8 फिल्में हैं। तो उस 8 फिल्मों की लिस्ट में मैं समझता हूँ कि मैं आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज हमें इतने ज़्यादा थिएटर्स तो नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत अच्छे थिएटर्स मिले हैं और बहुत अच्छे शो टाइम्स मिले हैं। मतलब आप कह लो तो हर सिटी में हमने 4 से 5 सिनेमाज कवर किए हैं। हर एक सिटी में हम कहीं पे लैक नहीं कर रहे हैं। बाकी ईस्टर्न ये टेरिटरी जो है, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें सुनने में आई कि वहाँ कुछ रीजनल राइट्स का प्रॉब्लम चल रहा है ईस्टर्न एरियाज़ में, जैसे बंगाल, असम और कोलकाता। तो वहाँ शायद हमें अभी तक स्क्रीन्स की कंफर्मेशन आई नहीं है। तो मुझे लगता है शायद वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। बाकी आई एम हैप्पी विद अदर सिटीज़। Okay, the last question to you. या Because now you become a part of Bollywood, ऐ दिल मुश्किल को लेके जिस तरह से मन से पॉलिटिकल पार्टीज थ्रेट दे रही हैं, मुकेश जी से DCP मुझे साहब से मिलके आते हैं, उनके मिलने के इमीडिएट बाद धमकी आती है कि हम स्क्रीन जाके थिएटर तोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज आलम ये हो गया कि सुबह मुकेश भट्ट साहब राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। जी, इस तरह से बॉलीवुड को सॉफ्ट मार्केट हो रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़ा ही अलग सवाल है, आजकल बहुत चल रहा है ये सवाल। मेरा ये मानना है कि जैसे कि हम एक्टर्स जो बाकी की कंट्रीज से इंडिया में काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि हर किसी को राइट है काम करने का, लेकिन कुछ एक्टर्स कंडेम नहीं करते हैं कि इंडिया जो सबको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देता है बाकी की कंट्रीज़ के एक्टर्स को, तो वो लोगों को अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो एटलीस्ट उनको कंडेम तो करना चाहिए। मेरा क्वेश्चन मेरा सवाल ये है, क्या सिर्फ फवाद खान की वजह से 400 टेक्नीशियन जिन्होंने ऐ दिल मुश्किल पे काम किया है जी, वो सफ़र क्यों करें? अगर किसी एक शख्स की वजह से एतराज़ है किसी को, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल। आप दादागिरी कर रहे हैं, आप फिल्म रिलीज होने नहीं दे रहे। मेरा सवाल ये है कि कितना जायज़ है? मुझे ऐसा लगता है कि ये जायज़ नहीं है। देखिए, जितना जो हमने एक्शन लिया है, हमारे आम जनता ने जो एक्शन लिया है वो सही है एक जगह, लेकिन फिल्म रिलीज़ होने देनी चाहिए, क्योंकि जितना हुआ आई थिंक वो बहुत ज़्यादा है। और अब आगे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को समझ में भी आएगा कि हमें ऐसा नहीं करना है। लेकिन जो हो चुका है उसको मेरे हिसाब से तो मतलब उसे क्रॉस कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है फिल्म बनाने में। तो मुझे लगता है कि एक सबक तो मिल चुका है। जिस तरह से विवाद हुआ है, जिस तरह से लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया है, सबक मिल चुका है। कोई भी अब ऐसा स्टेप नहीं उठाएगा, लेकिन जो हो चुका है पास्ट में उसको क्रॉस कर दें, तो उसको मतलब ज़्यादा वो ना करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम परेश मेहता है। मैं ये मूवी का प्रोड्यूसर हूँ और ये मूवी में मैंने एक नेगेटिव पुलिस ऑफिसर का रोल भी किया है। किस तरह से आइडिया है इस तरह की पिक्चर बनाने की? क्योंकि कश्मीर का मुद्दा अगर बात करें, कश्मीरी मुद्दों पर कई सारी फिल्में बन चुकी है, ऐसे में वहाँ पर अपनी फिल्म को जगह दिलाना कितना मुश्किल रहा आपके लिए, और ये आइडिया कैसे आया कि इस टॉपिक पे फिल्म? कश्मीर मुद्दे पे तो काफ़ी टाइम से और काफ़ी मूवी बनी हुई है, लेकिन जो हमारी जो मूवी है उसमें हमने एक फादर और एक सन का रिलेशनशिप दिखाया है। प्लस हमने ये दिखाया है कि कश्मीर के जो लोकल सिविलियंस है जो काफ़ी तकलीफ़ में उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, उनको टेररिज्म का तकलीफ़ है, उनको लोकल पॉलिटिक्स उधर बहुत ही ज़ोर शोर से है, जिसके कारण उनको काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। वो आज तक कोई मूवी में नहीं दिखाया गया और हमने इसमें बहुत ही बढ़िया फादर और एक सन की रिलेशनशिप दिखाई है। प्लस ये मूवी जो है वो ट्रू इंसिडेंट पे है और हमारे जो डायरेक्टर साहब थे वो कश्मीर से ही है, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने मुझे जब स्टोरी सुनाई तो मैं काफ़ी इंस्पायर हुआ उस स्टोरी से, वो करके हमने ये मूवी बनाई। तो एक मूवी को बनाना और आज वो कंप्लीट हो चुकी है, रिलीज होने वाली, तो एक साइड पे बहुत बड़ा करने पे भार होता है। तो आज आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं कि मूवी बस रिलीज होने वाली है आज? मैं बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक तो ये मूवी है वो रियल इंसिडेंट पे है और दूसरी चीज़ हमारे को काफ़ी अच्छी स्क्रीन मिली है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि
इसकी जो स्टोरी है वो काफ़ी लोगों को अच्छी लगेगी। और ये हमको जो मूवी का में जो सर्टिफिकेट मिला है सेंसर की तरफ से, वो यूथ सर्टिफिकेट मिला है, जिसके कारण ये मूवी हर एक यूथ के देख सकता है, फ्रॉम एज ऑफ 5 टू अप टू 50, मतलब हर एक लोगों के लिए है। और ये जो मूवी है उसमें काफ़ी लोगों को संदेश मिलेगा और काफ़ी बढ़िया बनी है मूवी। स्क्रीन की बात करें तो कितनी स्क्रीन पे ये मूवी जो है रिलीज होगी? ये सर अभी एज ऑन टुडे तो 200 स्क्रीन में ऑल ओवर इंडिया में रिलीज़ हो रही है कल से। फिल्म की स्क्रीनिंग है तो इस फिल्म को आप किस तरह से बधाई देने पहुंचे इस मौके पर? परेश भाई मेरे दोस्त हैं और इसमें जो एक्टर हैं नरेंद्र झा, ये भी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। तो मैं अपनी तरफ से उन लोगों को गुड विशेस देने आया हूँ, क्योंकि एक फ़िल्म बनाना एक अलग है, मतलब डिपार्टमेंट एक अलग होता है, बट फिल्म को रिलीज़ करना उससे भी बड़ा काम होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन फिल्म रिलीज़ होती है दैट्स अ बिग डे, लाइक बिकॉज वो इतना ईजी नहीं है। फिल्म तो आप बना लेते हो, बट कितनी फिल्में होती हैं जो अटकी रहती हैं, बट रिलीजिंग इज़ अ बिग थिंग, लाइक तो आई एम वेरी प्राउड फॉर परेश भाई, इवन फॉर नरेंद्र झा एंड द होल टीम, लाइक दे आर रिलीजिंग दिस फिल्म सो वेल। बिकॉज मैंने इनका पहले भी एक ट्रेलर लॉन्च अटेंड किया था, इट वॉज वंडरफुल। लाइक इनका जो सारे एफर्ट्स हैं वो बहुत बढ़िया है एंड बहुत करेक्ट, मुझे ऐसा लगता है। तो फिल्म के ट्रेलर तो आपने देखा है, तो ट्रेलर देख के आपको क्या लग रहा है, मूवी कैसी होगी? मुझे बहुत इंटेंस लग रही है, फादर और सन की ऐसा एक इंटेंस, मतलब मेरे सामने ऐसा लग रहा है कि एक ब्यूटीफुल स्टोरी है अबाउट रिलेशनशिप, दैट इज़ व्हाट आई फील। और वो ट्रेलर से मुझे यही सामने आ रहा है। बाकी परेश भाई शायद प्रॉब्ली डिटेल में बता सकें कि यही मुझे दिख रहा है कि अच्छे रिश्तों के ऊपर, एक बाप बेटों का कैसा रिश्ता होना चाहिए शायद के ऊपर कुछ है। मैंने देखी नहीं है फिल्म, बट मैं ऐसा मतलब भाप रहा हूँ देखकर कि हाँ, दिस शुड बी अ ब्यूटीफुल फिल्म, लाइक एक अच्छी स्टोरी, एक अच्छा कंटेंट होगा इसके अंदर। आज प्रीमियर के ऊपर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश यही है कि मेरा गुड विशेज़ है कि फिल्म बहुत चले और अच्छा, मतलब स्पेशली हमारे सो कॉल्ड क्या बोलते हैं बॉक्स ऑफिस पर ये धमाका करे। एक थोड़ा सा मजाक के नोट पर लास्ट करते हैं, जब प्रोड्यूसर आपके मित्र हैं तो आप इस फिल्म में क्यों नहीं? ये सवाल मुझे भी इनसे है कि मुझे क्यों नहीं लिया गया। खैर इन्होंने प्रॉमिस किया कि मुझे अगली फिल्म में लेंगे, सो आई होप लेंगे। तो अगली वो कौन सी फिल्म होगी जिसमें साथ दिखेंगे फिल्म में आपके? हाँ जरूर हम अगली एक, क्योंकि इन भाई साहब की जो पर्सनालिटी है वो हिसाब से वो कोई भी एंगल से फादर दिखते नहीं है, इसलिए हम अगली एक मसाला फिल्म बना रहे हैं जिसमें इनका बहुत अच्छा और बड़ा रोल होगा। जरूर फाइनल हो गया आज? या जी। और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी कोई अपकमिंग फिल्म या प्रोजेक्ट? हाँ, मेरी भी इनके साथ साथ एक फिल्म रिलीज़ हो रही है इसी फ्राइडे 31 अक्टूबर। मैं वो प्रमोशन करने नहीं आया हूँ क्योंकि आपने पूछा है, तो वो रिलीज़ हो रही है, तो वो आप लोग देखिए। मैं तो इसलिए मैं सारी जितनी भी ये फ्राइडे, मतलब उन सबको गुड विशेस है, मेरे मित्र हैं, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आया हूँ। मैं बोला मैं अपने प्रीमियर बाद में जाऊँगा, पहले यहाँ मैं एक अपना गुड विशेस देकर जाऊँगा। तो अभी दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली विशेष में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मेरा सबसे अच्छा संदेश यही है कि भैया पटाखे मत फोड़ो, मतलब फोड़ो तो बड़ा संभाल कर फोड़ो, कोशिश करो कि ना फोड़ो तो अच्छा है, क्योंकि साउंड पोल्यूशन होता है उसकी वजह से। दिवाली मनाओ, दिए जलाओ, सो ऑल माई गुड विशेस फॉर एवरीवन लाइक फॉर दिवाली। थैंक यू सो मच। अब फिल्म रिलीज होने जा रही थी, सब कुछ मेहनत करने के बाद, तो आप कितनी खुश हो, कितने एक्साइटेड हो इस मूवी को लेकर? क्या लग रहा है, लोगों को पसंद आएगी आपको? बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि ये पहली बॉलीवुड हिंदी मूवी है मेरी। तो मैं हिंदी फिल्म में ओपनिंग कर रही हूँ, तो मैं चाहूँगी कि ये फिल्म बहुत अच्छी लगे, लोगों को अच्छी लगे। तो मेरी तो यही है कि अच्छी लगे सबको। तो ये हिंदी मूवी में आपका पहली मूवी है, तो कितनी तैयारी करनी पड़ी आपको इस मूवी के लिए? क्या कुछ खास करना पड़ा? काफ़ी कुछ, क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, तो मेरा टोन काठियावाड़ी टोन है, और ये फिल्म थी बेसिकली कश्मीरी टोन पे, तो मुझे लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा। और ये रियलिस्टिक कैरेक्टर है। मैं अनमेरिड हूँ, इसमें मेरे 2 बच्चे दिखाए हैं, एज दिखाई है, तो जो बॉडी लैंग्वेज होता है, आपका टोन होता है, वो कैसे चेंज करना, वहाँ की आम औरतें कैसे रहती है, अपना गुजारा कैसे चलाती है, तो उस पर काफ़ी वर्कआउट किया। तो एक कश्मीरी लैंग्वेज बोलने की स्थिति है, तो ऐसा कोई डायलॉग जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो वो कौन सा डायलॉग था? डायलॉग तो नहीं, पर टोन में काफ़ी मुझे मेहनत करनी पड़ी। और आगे भी आपकी कोई फिल्म है हिंदी के लिए, कोई आने वाली है इसके बाद? 2-3 मुझे अच्छे ऑफर हुए हैं, पर जब तक फ्लोर पे नहीं जाती मैं उसके बारे में नहीं बता सकती। और इसके अगर कैरेक्टर की बात करें तो किस तरह की भूमिका है, आप इसमें क्या? इसमें मैं नरेंद्र झा जी की वाइफ का रोल कर रही हूँ, जो इकबाल है उनकी वाइफ का कैरेक्टर कर रही हूँ। इसमें साहिबा मेरा नाम है। एंड आम कहानी है कि इसमें माँ के प्यार को ज़्यादा नहीं दिखाया, बाप के प्यार को दिखाया है।
और एक पत्नी अपने पति को समझती है, जब सिचुएशन आती है उसे प्यार भी उतना ज़्यादा करती है, शिकायत भी बहुत ज़्यादा करती है, उस पर प्राउड भी करती है। तो एक इस तरह की मूवी बनाने के बाद अगर आपसे बात करें तो आपको कुछ ऐसा मैसेज मिला हो, मतलब बच्चे को गाइड्स करना या कुछ ऐसी कुछ आपने सीखा इस मूवी के? काफ़ी कुछ मैंने देखा कि वहाँ पे कश्मीर जो है उसको कश्मीर इतनी ब्यूटीफुल सिटी है, पर वहाँ के लोग हैं वो कितने दुखी हैं, क्योंकि कर्फ्यूज़ लगे रहते रहे, आतंकवादी आते रहते हैं, तो आम बच्चों को जो प्रॉब्लम्स होती है स्कूल जाने में, मार्केट खुलने में, तो आम जनता कितनी ज़्यादा परेशान है। तो मैंने ये देखा है कि वहाँ पे फिर भी लोग खुश हैं, इतनी बुरी हालत है फिर भी लोग कितना खुश रहता है। तो हम अपनी पर्सनल लाइफ में इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं, इन बिटवीन भी हम खुश रह सकते हैं। तो फिल्म कल रिलीज़ होने वाली है, तो आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे? मेरी फ़िल्म है इसलिए नहीं, पर ये बहुत प्यारी कहानी है, गाने भी बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। आप लोग देखेंगे तो आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और जो अच्छी फ़िल्म देखना चाहते हैं तो मैं चाहूँगी कि वो ये फ़िल्म देखें। मैम आज इकबाल माय फादर इकबाल का प्रीमियर है और कितना एक्साइटमेंट है आप इसमें जो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। ये मेरी पहली हिंदी बॉलीवुड मूवी है, तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपके किरदार की बात करें, क्या किरदार होगा उसके बारे में कुछ बताएं? मैं इसमें नरेंद्र झा जी की वाइफ का रोल कर रही हूँ, जिसमें मेरा नाम है शाइबा, जो आम औरत है। वहाँ की जो सिचुएशन है कश्मीर की, आतंकवादी आते रहते हैं, ब्लास्टिंग होते रहते, तो आम जनता को कितनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसमें एक वाइफ दिखाई है जो अपने पति को समझती भी है, शिकायतें भी करती रहती है और उन पे प्राउड भी फील करती है। और इस फिल्म में माँ का प्यार ज़्यादा ना दिखाते हुए फादर का प्यार दिखाया है। सो एक रियलिस्टिक कैरेक्टर में इसमें प्ले कर रही हूँ। ये प्रेरित होने वाली नहीं है, ये इसमें छोटे छोटे इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो आप अपने आप से कनेक्ट करेंगे। आपको लगेगा कि ये मेरे फादर की कहानी है या मेरी कहानी है, या मैं अपने बच्चे के लिए जो कर रहा हूँ वो कहानी है। तो ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई मेरे 2-3 फिल्मों की बात चल रही है, पर जब तक फ्लोर पे नहीं जाता मैं उस बारे में नहीं जानती। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे लगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव, नरेंद्र झा जी इतने अच्छे एक्टर हैं कि इनके साथ काम करके बहुत ज़्यादा कुछ सीखने मिला। मेरे डायरेक्टर सुजाद इकबाल खान जी, जिन्होंने मुझे काम करना सिखाया कि इस रोल को कैसे मैं रियलिस्टिक प्ले कर सकती हूँ। बहुत ही अच्छा, एक तो उसका लोकेशन ही इतना प्यारा कि आपको वापस आने का मन ही नहीं करे, और वहाँ की वादियाँ, वहाँ की बर्फ़, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हाय, मैं हूँ कोमल ठक्कर और मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की खूब 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 शुभकामनाएं। थैंक यू।